Okay, sir. Good morning to all of you who have joined. Today, we have all joined virtually to celebrate the World Environment Day, a very important day. And I am glad to share that Professor Anundeep Aliwalia is our chief guest for today's function, and he will be delivering a very important and educative talk on this occasion. Respected Professor Ahluwalia, on behalf of Director Badi Institute, all the staff members, and my own, I extend a very warm welcome to you on WISG platform. Sir, we are grateful to you for accepting our invitation at a very short notice to address us on this event. I understand you are much occupied today and committed to deliver at least 4 talks on environmental conservation in several universities and colleges located in North India. Friends, you all are aware that the purpose of celebrating the World Environment Day is to spread awareness about the threat to the environment due to the rising pollution level and climate change. This year, the theme of World Environment Day is ecological restoration. And Professor Ahluwalia has chosen a topic very well related to the theme. He will be speaking on the earth and environment sciences, outreach for sustainable nation building and building. Professor Ahluwalia is a leading expert in the field of earth and environmental sciences. He is a very popular personality among the geological community. I don't think that Professor Ahluwalia needs any formal introduction. However, for the sake of our young researchers, I may mention that Professor Ahluwalia started his career as a senior geologist in GSI and later on joined Punjab University and superannuated as the HOD of the geology department. He has more than 4 decades of experience. He has professionally traveled across the several countries. Professor Ahluwalia is often seen in TV debates and shows giving experts opinions on emerging problems of earth sciences and environmental problems. His articles on environmental conservation are being regularly published in leading newspapers and magazines. Sir, we are thankful to you. But before I invite Professor Ahluwalia to begin his address, I request Dr. Kala Chansain, Director, Wadi Institute, to say a few words on the World Environment Day and welcome our chief guest. Director, sir, please. Thank you, Segalji. And I first thank Professor Ahluwalia for accepting our invitation. And I also thank all the colleagues of Wadia Institute of Himalayan Geology today for joining into this important program of World Environment Day. We are going to celebrate through lecture. Because of this pandemic, you know that we are arranging this lecture online. Otherwise, we could have directly interacted with Professor Waliaya, who has made a tremendous contribution to the environmental sciences and our earth sciences. So all of you know, as Dr. Sehgal also has mentioned, that 5th June every year we celebrate World Environment Day. But one thing we should remember, why should we celebrate World Environment Day? This is just for propagation of the awareness about the environment and what is the responsibility of a responsible citizen, responsible habitat into this planet Earth, and what are the actions we should take to protect the environment through education, demonstration of some sort of activities, arranging some lectures, doing some sort of tree plantation, or cleaning the surroundings or environment, etc., etc. And Dr. Sehgal has told that this year this theme is ecosystem restoration. So it is the responsibility for all of us to reimagine, to recreate and restore the environment we have faced during the last 1.5 years due to this corona pandemic. We have understood that when there is some threat and what sort of feeling we have on our lives, and it is the environment, if we can protect, if we can keep it clean, then there should not be any viruses, there should not be any sort of bacteria around us. So this day is very, very important to remind us that the food we take, the air we breathe, the water we drink, the soil over which we are depending heavily, the environment in which we are living, the climate, the biodiversity, the ecosystem that have made a tremendous impact on our planet and environment. And it has made it habitable
from different point of view, and nature has given all whatever we need for all these of our survival, of our ecosystem, of our development, of our socio-economic advancement. However, we have not learned that how much the nature whatever has given, how much we should take, how much we should take care. So this day reminds us to think of how we can maintain the economy from the available resources and how we can have our ecosystem. There should be balance between the economy earned from the resources, from the exploitation, as well as we have to keep health of the ecosystem and environment. I will not take much time because today we are here to listen to Professor Ahluwalia, who has been a very renowned scientist, not only in national level, but also in international level. But I want to bring to the notice of all of our colleagues, those who are listening online to this important program, that we are talking about environment, but what are the environment and what are the environmental problem? One of the environmental problem, you have understood that growth of population, this is also make impact to the environment. That deteriorating the natural resources, I have already spoken, diminishing the forest, wetlands, erosion of soil, coral reefs, depleting underground water, regular shortage of fresh drinking water, vanishing plant, some other issues related to this biodiversity loss, rapid extension of some form of important animal species, collapses of fisheries, rising air water pollution, and the rise in atmosphere temperature, global warming, we are talking about climate change, we are talking about very few days back. We have also seen the impact of the climate change in terms of the landslides. So many things have happened. Many things are taking place into the glaciers. So these are all directly related. So how we are deteriorating the climate, how we are deteriorating the global environment, global impact, these are all coming to us, consequences. The way we behave, the way we take care of our own health to fight against the corona, we have to adapt some sort of strategies to preserve our conservation, to take care of the health of the environment. And if environment is healthy, we are also healthy, and we can take care, we can have a very happy, peaceful life. So this is very important message. I take this opportunity to share with all of you. I stop over here, and once again welcome Professor Ahluwalia to give his thought provocation into this Environment Day, to arise awareness as well as awaken people, those who are just thinking that they are the habitat of this planet, but what is their responsibility, what is their role as a earth scientist, what we can do towards the energy security, towards the water security, towards the industrial development, all we can do. But whenever we want to do, we have a break that we should do how much, so that the environment will not be affected, the protection and the conservation, preservation of the environment can be maintained, can be sustained, so that we can also sustain. Thank you very much, sir. Now it is Professor Walia ji to take over. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite Professor Walia, please, sir. I'm so grateful for a very brief but very exhaustive and comprehensive summing up done by our director Sahab, and my job becomes slightly easier. पहली स्लाइड मैं आप सबकी परमिशन से बहुत कुछ हिंदी में कहूँगा, बिकॉज इस देश में अगर हम सब कुछ अंग्रेजी में कहेंगे तो इस देश को हम कभी भी अपने साथ नहीं ले पाएंगे, अपनी पॉपुलेशन को। हमें लोकल लैंग्वेजेस में, हमें बंगला में, तेलुगु में, तमिल में, पंजाबी में, सभी भाषाओं में और बहुत सारी पिक्चर्स के माध्यम से अपनी बात कहनी होगी। पहली ही तस्वीर जो आपको दिख रही है हमारी बहुत फेमस नैनीताल की झील। सुबह सुबह पहुंचा था मैं, कोई लेक्चर ही था वहाँ पे भी, एग्जाम भी था, और देखा तो दूर से वो ये धुआं नैनीताल में भी वो पोल्यूशन दिखा तो बहुत अफसोस हुआ। एक तस्वीर ली थी मैंने सौंदर्य के लिए, पर बीच में ये कमबख्त, ये जालिम धुआं, और ये धुआं हमारा आसमान काला कर देता है। कई बार
आसमान नीला था ये हमें पता ही नहीं रहता। शायद आने वाली पीढ़ी को ये पता ही ना हो कि आसमान नीला होता है। सीवी रमन साहब आज जिंदा होते तो शायद रमन इफेक्ट डिस्कवर ना होता। मेरी टॉक इज डेडिकेटेड, सर झुका के समर्पित है प्रोफेसर एस.वी. भाटिया, द ग्रेट जियोलॉजिस्ट, एंड टू सुंदरलाल बहुगुणा जी, द ग्रेट एनवायरमेंट क्रूसेडर। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अर्थ साइंसेज और एनवायरमेंटल साइंसेज को मिलजुल के जोड़ के एक सॉर्ट ऑफ कॉकटेल बना के उसको इकट्ठा किया जाए। बिकॉज अक्सर भूविज्ञान जियोलॉजी को लोग जूलॉजी से कंफ्यूज करते हैं, और हिंदुस्तान में दुनिया भर में एनवायरमेंटल साइंसेज और अर्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट तकरीबन 90% जगह पे वो इकट्ठे हैं, वो इसको इकट्ठा करते हैं। और अगर हम पर्यावरण को और भूविज्ञान को थोड़ा इकट्ठा करके देखेंगे और इकट्ठा करके बात करेंगे और इकट्ठे पे ही काम करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, उनको भी मिलेगी, उनको हमारे ज्ञान का फायदा होगा। हमें एक जो ज्यादा एम्फोसिस एनवायरमेंटल साइंसेस पे रहता है उसका फायदा होगा। सो भाटिया साहब और बहुगुणा जी को सिर झुका के मैं ये बातचीत समर्पित करता हूँ। जो मुद्दा मैंने उठाया है, ग्रास रूट्स अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज अवेकनिंग, जागरूकता गांव-गांव में, एक पंचायत के लेवल पे, एक स्कूल के, एक छोटे से स्कूल के छोटे से बच्चे के लेवल पे वो होगी। और वो बहुत सारे माध्यम से होगी, कार्टून्स के माध्यम से होगी, खिलौनों के माध्यम से होगी, छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से होगी। वही एक टूल किट है, टूल किट आजकल काफी फेमस है, वही एक टूल किट है, मेरी टूल किट है, आप सबकी टूल किट होगी पर फॉर सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट। हम लोगों को वी हैव टू थिंक ग्लोबली बट वी हैव टू एक्ट लोकली। वी हैव टू एक्ट इन आवर होम्स, इन आवर लाइफ्स, in our institutes, in our schools, in our streets. So this is the formula. In fact, यही है मेरी पूरी बातचीत का सारांश। और ये अच्छी मैंने स्लाइड नीचे रखी, शुद्ध वातावरण वाली रोहतांग के रास्ते की मढ़ी का दृश्य रोहतांग से देखा हुआ। और ये हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, एक बहुत जबरदस्त लैंडस्केप है, एक बहुत जबरदस्त पर्यावरण है, एक बहुत जबरदस्त भूविज्ञान का एक स्पेक्ट्रम है। पर हम पिछड़ गए हैं जियो हेरिटेज पार्क्स के, जियो पार्क्स में हम कहीं चालू ही नहीं हुए इसके अंदर। हमारे साथ के देश चीन खास तौर पे बहुत आगे निकल लिया। तो मैंने शुरू में अपने टाइटल में 2 वर्ड्स ऐड कर दिए थे, जो सहगल साहब को पहले मैंने सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट भेजा था, साथ में मैंने वर्ड पीस भी लगा दिया है। क्योंकि जब आप मिलजुल के इको टूरिज्म और जियो टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, जब आप मिलजुल के डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर्स जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे, अक्रॉस द बॉर्डर्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करेंगे, और इको हेरिटेज को खास तौर पे एक एग्जांपल है हमारा हिमालय अद्भुत है, हिमालय से ऊंचा कुछ नहीं, और हिमालय से ज्यादा बड़ी नेमत नहीं कुदरत की जो हमें मिली, इसको शेयर खाली ये हमारा नहीं है। ये 11-12 देश जो हैं ये हिमालयन इकोलॉजी को शेयर करते हैं। और हम लोगों को ये मैसेज है मेरा, मैंने हमेशा कहता हूँ, पिछले साल जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी मैंने कहा था कि नोबेल पीस प्राइज अगला मिलने वाला है किसी ऐसे व्यक्ति को जो भूविज्ञान और पर्यावरण विज्ञान को इकट्ठा एक इसका अमृत बना के इन देशों को पिलाएगा, इन देशों को समझाएगा कि मिलजुल के हमें भूविज्ञान करना है, मिलजुल के हमें पर्यावरण का विज्ञान करना है। और यही सोच है, यही विजन है जो किसी दिन तो नोबेल प्राइज जो साइंसेज में, एनवायरमेंटल साइंसेज में भी मिलेगा। तो वो ये यहाँ मिलने वाला है जम्मू में। इस बात से वो बच्चे खड़े होके उन्होंने शुरू में ही टॉक में ढेर सारी तालियां बजाई। सामने हमारे वो व्हाइट कॉलर्ड वाले साइंटिस्ट बैठे थे
जिनको अक्सर नोबेल प्राइज मिलता है। हमने उनको कहा कि ठीक है, आप हम अपनी बात कह रहे हैं, दम से कह रहे हैं, और गांधी जी से प्रेरित होकर कह रहे हैं। गांधी जी ने एक बात कही थी छोटी सी, whatever you may do may seem insignificant to you, but it's more important that you do it. कभी कभी ये जो मैंने बात कही है, इस पे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिली। इस बात पे कईयों ने मेरी टांग भी खींची, कईयों ने मुझे दीवाना कहा, पागल कहा। वो मेरे लिए, मैं उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ, मैं उससे बहुत इनकरेज होता हूँ। तो गांधी जी को समर्पित, वो गुना जी को समर्पित, भाटिया साहब को समर्पित, सबसे बड़ी बात हमारे घर के हर एक छोटे बच्चे को समर्पित, हमारे पूरे राष्ट्र को समर्पित, सभी राष्ट्रों को समर्पित, पूरी धरती माँ को समर्पित। एक अंग्रेजी में तो लिखा है, गांधी जी ने जो गीत गाया था गुरुदेव का, अपने डायरेक्टर साहब तो उसको आई एम श्योर ओरिजिनल भाषा में गा सकते हैं, पर मैं भी कम नहीं। मैं बता दूं, अल्टीमेटली फिलॉसफी इस सारी मूवमेंट की एक ही है, यदि तोरे डाक्षु ने केव ना आशे तो वे एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो रे। सो ये सारी जो मुहिम है, इसमें खाली बातचीत की बात नहीं है, खाली एक दिन के पर्यावरण दिवस की एक औपचारिकता की बात नहीं है। वी हैव टू बी द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट हर 365 दिन, हर दिन पर्यावरण दिवस होगा, तभी हमारा ये विश्व में खुशहाली होगी, शांति होगी। और जब पर्यावरण की रिसर्च इकट्ठे होगी, पढ़ाई इकट्ठे होगी, जन चेतना होगी, तो बहुत कुछ होगा। पर जरा देखिए हुआ क्या। 460 करोड़ साल का इतिहास था हमारा, उसको समझ नहीं सकते हम, किसी को समझा नहीं सकते क्या होता है 460 करोड़ साल। इसको 46 साल में, 46 इयर्स में स्क्वीज कर दिया। तो हम तो ये 4 घंटे के करीब यहाँ पे थे, और उस 4 घंटे में पहले तो हम बड़े शरीफ थे, पत्तों से अपना तन ढकते थे, बिल्कुल कुदरत के साथ रहते थे, कोई कुदरत से कोई हमारा छेड़छाड़ नहीं था। और वो हमने आग जलानी भी सीख ली थी। अर्ली मैन जो था वो एक वही था, एक असली जियोलॉजिस्ट, और उसको उस पत्थर की पहचान कर गया था, कौन से पत्थर से आग निकलेगी, कौन से पत्थर से मीट काटेगा। पर 1 मिनट इस 4 घंटे में, अगर इतिहास में 1 मिनट ही सिर्फ देखा जाए तो 50% जंगल काट डाला इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खराब चीज नहीं थी, पर थोड़ा बैलेंस होना चाहिए था। बैलेंस बिगड़ता है तो बेड़ा गर्क होता है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको छोटी सी, कि मैंने कहा ना बच्चों के लेवल पे होगा। बच्चे जागरूक होंगे तो बड़ों को सीधा कर देंगे, बड़ों को सिखा देंगे। जब बच्चा गले मिलके कहता है पेड़ ना काटो प्लीज, पानी में आप गंदगी ना फैलाओ प्लीज, थोड़े पेड़ लगाओ और पौधों में पानी दो, थोड़ा सा मुझे, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास खिलौने हैं, वॉल्केनोस पे हैं फोकस, वो ट्रीज पे फोकस्ड हैं, वो डायनासोर्स पे फोकस्ड हैं, वो धरती के इतिहास पे फोकस्ड हैं। ये की गुम्फा के पास के, वो पीछे में की गुम्फा दिख रहा है आपको, उसके पास के हम एक ये इंटरनेशनल जियोलॉजिकल एक ट्रैवर्स था, भार्गव साहब उसको लीड कर रहे थे, और मैं फोटोग्राफर हूँ, इसमें नहीं हूँ, मैंने फोटो खींची है। पर वो बच्चे मेरे पास भाग के आए कि साहब जी आप क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको आधे मिनट में हिंदी में बता दिया कि हम हिमालय पर रिसर्च करने आए हैं, और ये चट्टानें जो पीछे की हैं ये जुरासिक हैं। बच्चों ने घूम के पूछा तो इनमें डायनासोर क्यों नहीं है जी। तो ये लेवल है हमारे बच्चों का। अगर ये बच्चे हैं हमारे, तो हमारा देश और ये दुनिया बहुत आगे जाने वाली है। कमी है तो हम में है, हमारी जनरेशन में है। आने वाली पीढ़ी कहीं ये ना कहे कि इन लोगों ने हमारा पानी बर्बाद कर दिया, हवा बर्बाद कर दी, हमारा जीवन भट्ठा बिठा दिया। ये एक और उदाहरण है, चिचिम गांव में कुछ सैंपल्स लेने थे मेरे को। ये मैं हूँ, बहुत 20 साल तक के लगभग पुरानी पिक्चर है, हुलिया बिगड़ा हुआ है क्योंकि स्पीति में था। ये अध्यापक डोरजे साहब ने रात को खाना खिलाया, दाल चावल और बातचीत की। तो सवेरे बोले कि मेरे बच्चों को थोड़ा सा बता दो, और उन्होंने मेरे हाँ कहने से पहले ये बच्चे बुला लिए चिचिम गांव के स्कूल के, और इनको हमने 10-15 मिनट में हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का पर्यावरण और प्लेट टेक्टोनिक्स और सब कुछ बता दिया। मेरे गले में वो जीपीएस लटका था, तो उसने पूछा कि साहब ये क्या है। मैंने कहा बेटे तो क्या समझता है क्या है। वो बोला मेरे को लगता है आपके गले में ना एक छोटा कंप्यूटर लटका है। मैंने आसमान की तरफ करके उसको दबाया तो बोला लगता है आप उपग्रह से कोई जानकारी ले रहे हो। ये देखिए ये जागरूकता है।
अगर हमने इन बच्चों की इस टैलेंट को हार्नेस किया, इनको ठीक से मोटिवेट किया और एक सरल भाषा में, उनकी भाषा में जो वो समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से अगर उनको सिखाया तो हम सफल होंगे। और ये करना बहुत जरूरी है। मैं असफलता की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो फॉर्मूला है ये सफल ही होगा, इसमें कोई ना सफल होने की। ये एक एग्जांपल है हमारा चंडीगढ़ का। इनफैक्ट मुझे आउटरीच इंचार्ज बना दिया था हमारे पिछले वाइस चांसलर साहब ने, जो मेरे स्कूल मेट थे। और आप देखिए, एक स्कूल देता है तो 4 घंटे दे देता है बातचीत पे। हमने कुछ फिल्म शो किए, कुछ बातचीत की, कुछ बच्चों से कुछ गपशप लगाई, एनवायरमेंट की और अर्थ की हिस्ट्री की, इकट्ठा किया था। खाली आप पर्यावरण की बात करिए तो कभी कभी वो ऊँघने लगते हैं। उनको बहुत सारे लोग पर्यावरण के लेक्चर देके जाते हैं और वो कुछ ऐसे तरीके से देते हैं कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। जब भूविज्ञान को और पर्यावरण के विज्ञान को इकट्ठे किया जाता है तो वो बहुत दिलचस्प हो जाता है, थोड़ा सा मसालेदार हो जाता है और उसमें रोचकता बढ़ती है। तो ये कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल बहुत एलिट स्कूल है। तो मैं कहूँगा वार्डन इंस्टीट्यूट से हम सब मिलके आपके उस एरिया में, मसूरी, देहरादून में, उत्तराखंड में बहुत जो भी स्कूल है, मैं ये नहीं कहता अमीर स्कूलों में ही बात करनी है, इनफैक्ट गरीब स्कूलों में बात करनी ज़्यादा जरूरी है। और हम मिलजुल के आने वाले वक्त में इसी माध्यम से और आगे बढ़ा सकते हैं इस बातचीत को। आज थोड़ा सा टाइम है, इसमें सिर्फ शुरुआत है और ये एक औपचारिकता नहीं, ये खाली एक कोई चौंचला नहीं, इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी, दिस इज अ मिशन वी आर इनिशिएटिंग टुडे। ग्रेजुअली वी गो। वार्डन इंस्टीट्यूट मेरे लिए मेरे दिल में रहता है, बिकॉज मेरे सारे सीनियर्स वहाँ पे थे, मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पे हैं, मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। और मैं जब भी फील्ड वर्क करवाने आया हूँ, बिकॉज मेरा PhD एरिया मसूरी फॉस्फोराइट का है, तो हमेशा ही मैं वहाँ पे चले आया और हमेशा लाइब्रेरी में गया, हमेशा किसी न किसी सेमिनार में गया और बदनाम हूँ मैं सवाल पूछने के लिए और डिस्कशन के लिए। जब भी गया तो लोग बहुत खुश हुए कि आज या बातचीत होती है। तो देखिए, कभी कभी आपका आर्टिकल पढ़ के डॉक्टर कलाम साहब आपको बुला लेते हैं। एक आर्टिकल था मेरा करंट साइंस का, उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो उसी पे चलता रहेगा। उन्होंने मुझे लिखा, व्हेन यू आर बैक इन इंडिया, मैंने सिंसिनाटी से लिखा था, आई वांट टू मीट यू। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कलाम साहब भी किसी का आर्टिकल पढ़ लेते हैं, एक साधारण से अध्यापक का। सो ये है मेरा ख्वाब, ये है मेरा ख्वाब। हमने एक्चुअली चाहा था कि साइंस सिटी एक पंजाब यूनिवर्सिटी में बना लें। हमारी साइंस सिटी है कपूरथला में, जिसमें अद्भुत योगदान है प्रोफेसर अशोक साहनी का, अद्भुत योगदान है प्रोफेसर अशोक साहनी का। एक म्यूजियम है सेक्टर 10 में। मैंने चाहा था कि एक ऐसा नेशनल ज्योग्राफिकल विजिटर सेंटर जैसा ग्रैंड कैन्यन में है, कपूरथला में आईमैक्स थिएटर है, पर देहरादून में क्यों ना हो, चंडीगढ़ में क्यों ना हो, और हमारे हर शहर में क्यों ना हो। इसका एक थोड़ा सा तोड़ आजकल निकल आया है। यूट्यूब बहुत कुछ दे रहा है आपको, पर क्या यूट्यूब पे जो अर्थ का, एनवायरमेंट का, नेशनल जो कुछ चैनल्स का, स्मिथसोनियन चैनल का, उसका भरपूर योगदान जो है, उसका इस्तेमाल करने के लिए हम एक जरिया बन सकते हैं। हम उसको सबको बताएं कि आजकल ये लॉकडाउन चला हुआ है, बच्चों को घर पे बैठ के बोर होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान विज्ञान है जो एक पल में आंखों के जरिए, कोई भाषा नहीं होती उसकी, विजुअल की कोई भाषा नहीं होती, पर विजुअल से ज्यादा इफेक्टिव कुछ नहीं होता। तो ये वाला माध्यम हम अपने घर पे सबसे पहले अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को शुरुआत करें। हम एक्चुअली आजकल कर रहे हैं। अभी एक मेरे घर में एक छोटा सा जियोलॉजिस्ट है, अभी उठा नहीं है, सोया हुआ है। अगर वो उठ गया तो उसके बाद में मैं अपना लेक्चर ज्यादा देर दे नहीं पाऊंगा और शायद वही आके देने लगे लेक्चर। तो ये वाली जागरूकता इन 5-6 साल के बच्चों में, घर में हम अगर कर जाएंगे, जो मैंने कहा था, एक्ट लोकली, एक्ट डोमेस्टिकली एंड थिंक ग्लोबली। सो ये एक एग्जाम्पल है। कुछ आजकल तो जरूरत नहीं है ना इनकी, तब तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जा रहा है। तब तो ये बड़ी मुश्किल से जोड़ जुगाड़ करके मैं लाया था सिंसिनाटी से 2006-7 में। उन दिनों ही था वो एक ट्राइनियम फेस्टिवल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट अर्थ। अब ये देखिए, एक पोस्टर में हमने ढेर सारी, ये फिल्मों के कितनी हैं, तकरीबन 23-24 के करीब, 25 के करीब हैं, जो इसमें एक उसकी
हॉलीवुड की फिल्म भी थी डे आफ्टर टुमारो, जो थोड़ा एक्साइट करती है बच्चों को, फिक्शन था उसमें। ये सब कुछ इसमें जो सारे थीम्स थे, उसके इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट अर्थ जो यूएन प्रोग्राम था, उसके हमने ये पोस्टर म्यूजियम में 10 सेक्टर के गवर्नमेंट म्यूजियम में ये डिस्प्ले था। हमारे अपने ऑडिटोरियम में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये फिल्म्स चलती थी, अक्सर चलती थी। एक छोटा सा टीवी एलसीडी तब था, हमने अपने गैलरी में बाहर ही दरवाजे के उधर लगा हुआ है। तो ये कांस्टेंट आई बॉल कांटेक्ट से जो बच्चे बड़े या छोटे, पढ़े लिखे या कुदरत से पढ़े हुए, डिग्री होल्डर हो या ना हो, डिग्री एक्चुअली एक कागज का टुकड़ा होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होती। एक एग्जाम्पल है, ये मेरे दिल का जियो पार्क है। किसी ने कहा अद्भुत स्ट्रोमेटोलाइट्स का डेवलपमेंट है मोरनी हिल्स, ये हिमालय है पर हरियाणा में है। तो यहाँ पे ये मैं फटाफट ये दिखा दूं आपको। इससे पहले किसी एक जियो पार्क्स का, एक जियो हेरिटेज का ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसमें इंसा की मीटिंग हुई थी 2 साल पहले अगस्त में 2019 में, तो हमने ये चालू किया था। तो उस वेबिनार में मैंने कहा कि देखिए यूनेस्को कब करेगा, भारत सरकार कब प्रपोजल देगी, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं ये जियो पार्क सब बच्चों के दिल में बन जाए। जब दिल में बन गया तो उन कागजी टुकड़ों की कोई अहमियत नहीं है। कोई हमें इसको रिकॉग्नाइज करे ना करे, कुदरत ने हमें बख्शा था, हमने इसका आनंद लिया और भरपूर आनंद लिया, और चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद लें और ये कंजर्व हो, प्रिजर्व हो, डॉक्यूमेंटेड हो, और ये इसको कोई क्षति पहुंचने का चांस ना हो। So this is an example of what I thought एक इकोसिस्टम खाली आज की तारीख का इकोसिस्टम नहीं होता है। भूतकाल का इकोसिस्टम भी हमारे सब पहाड़ों में, स्लोप में, नदी नालों में, उन तहदार चट्टानों में, हर तरह की चट्टानों में, वो इतिहास भी तो एक इकोसिस्टम है। ये कंटिन्यूम है, ऐसा नहीं है कि भूविज्ञान का इकोसिस्टम अलग है और आज का इकोसिस्टम अलग है। आज जो है पहले था, और जो पहले था आज है, यही तो है। प्रेजेंट इज द की टू पास, यही तो है भूविज्ञान। तो ये मेरा थीसिस है, ये मेरा प्रपोजल है आप सबसे भी, कि भूविज्ञान और पर्यावरण के विज्ञान को जोड़िए। और पर्यावरण वाले हमारे जो मित्र हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको मिलती है और भूविज्ञान को उतनी लीडरशिप रोल भी नहीं मिलता, इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती। उसमें हम किसी को दोष ना दें, अपने आप को ही दोष दें और कुछ तरीका निकालें। पर एक बात पक्की है, a country which has poor focus on geosciences and environmental sciences. In fact, environmental sciences compulsory है पढ़ाना as per UGC guidelines and Supreme Court decision. But fact is this, that's a mere formality, and that environmental sciences education has failed. And we have only 4% or so education in universities and colleges in geosciences. Time has come to give effective education from nursery, LKG onwards in environmental sciences as well as geosciences as a combined toolkit, as a combined educational toolkit, as a combined national strategy and national vision. वो रोल अपने डायरेक्टर साहब के जैसे, अशोक साहनी साहब के जैसे लोग, भार्गव साहब के जैसे लोग, उनका है। पर अगर ये लोग सफल हो सकते तो ये अब तक के सफल हो जाते। कुछ सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें मिलजुल के सभी को ये जद्दोजहद करनी होगी कि ये देश गरीब और डाउन ट्रॉडन नहीं रहेगा, ये देश के आसपास में युद्ध नहीं होगा। हम मिलजुल के जियो टूरिज्म, इको टूरिज्म, जियो ट्रैवर्सेस और जियो ट्रैक्स, एक एग्जाम्पल जो शुरू की झील थी, वार्ड इंस्टीट्यूट एक बड़ा भारी काम कर सकता है। उत्तराखंड में जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कम से कम वहां आपके बैनर तले एक वेदर प्रूफ बड़ा डिस्प्ले हो, जिसमें लिखा हो नैनीताल की झील का जो चूने का पत्थर है वो 60 करोड़ साल पुराना है, और कब बना था, किन पर्यावरण में बना था, क्या इकोसिस्टम था। ये उत्तेजना, ये एक्साइटमेंट जनसाधारण में क्रिएट करना। रोहतांग जाते हुए सामने तांडी, ये 3 जियो पार्क हैं एक्चुअली जो मैं
पिछले वाला जो था बड़ा शिगरी, अगला है बड़ा शिगरी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंटीमनी मिनरलाइजेशन का, माइनिंग का ये इतिहास है। ये 3 मैंने प्रपोज किए थे। वो बोले कि साहब कागजी कार्रवाई होगी, वो मंत्रालय में लिखना होगा, उनको समझाना होगा। हमारे दशा ये है, दुर्दशा ये है कि हम बाबुओं को समझाने के लिए जग मारे हैं, कोई सुन नहीं रहा। सो हमारे पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन ये, विलेज लेवल पे जब हम जनसाधारण को समझा देंगे, वो धीरे धीरे करके राजनेताओं को और मीडिया पर्सनल को और बड़े नेताओं को समझा लेंगे। हम लोग ऊपर से शुरू कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं। मैं प्रपोज करता हूं पंचायत के लेवल से ही जो चीज ऊपर को जाती है वो सफल होती है। सो स्कूल, और दूसरा माध्यम है स्कूल का बच्चा। एक स्कूल का बच्चा ही सबसे बड़ा आदमी होता है इस देश का, वही है भविष्य। तो उस पे ही फोकस करें, मेहनत वहीं पे करें। और कभी कभी बातचीत से, छोटी मोटी से एक भूवैज्ञानिक को ऐसे ये मिल जाता है। मैंने खालसा कॉलेज अमृतसर, एक हेरिटेज कॉलेज है, बड़ा जबरदस्त कॉलेज है, 100 साल पुराना। वहां पे क्लाइमेट चेंज का एक सिंपोजियम था, बॉटनी डिपार्टमेंट ने कराया था। किसी बच्चे ने, जो कहीं लेक्चरर था लुधियाना में, उसने मेरा नाम दिया कि आप उनको बुलाइए। मैं वो टॉक देके ही निकला था कि एक दिन फोन आया कि एक बच्ची ने खालसा कॉलेज से आपका नाम टेडेक्स टॉक के लिए प्रपोज किया है। आप यकीन मानिए, मेरे को 3 साल पहले तक ये नहीं पता था टेडेक्स टॉक क्या होती है। और सुना था, पर ये नहीं था कि टेडेक्स टॉक बड़ी जबरदस्त चीज होती है। घर में बताया तो बच्चे बताने लगे कि शाहरुख खान इसका वो था। मैंने कहा देखो, मैं शाहरुख खान की इज्जत करता हूँ, आर्टिस्ट है, पर टेडेक्स टॉक में योगदान बड़े बड़े स्कॉलर्स का है। अब तो मैंने देख लिया, बहुत बड़े बड़े जो टेड है ये वाला, क्यों ना हमारे जियोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद इकट्ठे मिलकर टेडेक्स टॉक्स करवाएं। व्हाट इंस्टीट्यूट एक करवा सकता है, और जगह जगह पे ये वाला एक फोरम एक और है, एक अद्भुत फोरम है जहां पे हम अपनी बात कह सकते हैं, जोर से कह सकते हैं, असरदार तरीके से कह सकते हैं, और हर भाषा में कह सकते हैं। ये पानी के बिना प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, ये सब समझते हैं पर कोई नहीं समझता। सारा का सारा मलबा, मल मूत्र सब कुछ ही तो हर नदिया में जा रहा है। आप बताइए कि बाहर की टंकी में एक छिपकली गिर जाए तो जान को बनाती है, सारा फ्रिज धो दो, सब भांडे धो दो, सब कंटेनर धो दो। नदिया में सारे शहर का कचरा, कानपुर का कचरा, बनारस का कचरा, लखनऊ का कचरा, यहाँ चंडीगढ़, ये नैनीताल में पूरी झील में कचरा। समृद्धि सलिला अदन्या, प्रॉस्पेरिटी इज कंट्रोल्ड बाय वाटर। ये एक बड़ी बात है, हमें लोगों को समझाना होगा। पर्यावरण दिवस पे एक बात समझ लें कि पानी को जो दूषित, ये प्रार्थना हम सब करते हैं, और हर सभ्यता में प्रार्थना है। हम शांति पाठ अक्सर घर पे करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये शांति पाठ पर्यावरण के लिए शांति का पाठ है। स्वर्गलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियां शांत हो, वनस्पतियां शांत हो, विश्व के देव शांत हो, ब्रह्मदेव शांत हो, सर्वत्र शांति हो, शांति भी शांत हो, वह मेरी ओर से शांति दे, अर्थात दैविक, दैहिक, भौतिक, तीनों प्रकार की शांति हो। इसमें जोड़ लीजिए कोरोना भी शांत हो और ओजोन भी शांत हो, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात, हमारे बुजुर्गों को शांति हो, उनकी उम्र लंबी हो, उनकी सेहत अच्छी हो, हमारे बच्चों को बहुत ही शांति हो, जिंदगी भर उनको सेहत मिले। पर वो मिलेगी कैसे? ऑक्सीजन तो थोड़ी सी छोड़ दीजिए, थोड़े से पेड़ तो और लगा दीजिए, नहीं तो 50 साल के बाद में बच्चे होंगे, पैदा होंगे कि नहीं होंगे भगवान जाने। ये अर्थवार में उलझे रहेंगे वो, और अगर होंगे तो बीमार होंगे, और वो पूछेंगे कि हमारे पूर्वज इतने मूर्ख क्यों थे, उन्होंने वक्त रहते क्यों नहीं सोचा। जो पैदा नहीं हुआ बेजुबान है, बेजुबान के लिए जुबान उठाना, आवाज उठाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये मैं इनफैक्ट एक एग्जांपल आपको सिर्फ देना चाह रहा था कि मीडिया में लिखना भूवैज्ञानिकों और पर्यावरणविद को बहुत जरूरी है। आपके पेपर, मेरे भी बाय चांस, आई एम नॉट टेकिंग वेरी बिग क्रेडिट फॉर दैट, 21 साल की उम्र में मेरा एक वर्चुअल फ्लूक में एक पेपर नेचर में छप गया था 1971 में, मसूरी फॉस्फोराइट पे था। बाद में एक और छपा, मेरे 2 पेपर बाय चांस नेचर में, और दैट डजंट मेक मी ए वेरी ग्रेट जियोलॉजिस्ट, ऐसे ही बाय चांस छप गया। तो मैं ये वाली बात को अहमियत देता हूँ। सुनामी, एशियन सुनामी में लाखों लोग मर गए,
और कुछ बहस हुई साहब, हमारा पैसिफिक वार्निंग सिस्टम से एग्रीमेंट नहीं था, तो वहां से वार्निंग कोई क्यों देता आपको। और हिंदुस्तान टाइम्स ने ऐसे मुझे कहा कि आप लिखेंगे, और उस दिन भाटिया साहब को मुझे फोन आया कि ऑपोजिट एडिटोरियल पेज में तुम्हारा आर्टिकल है फोटो के साथ, सुनामी पे तुमने बड़ी बड़ी जबरदस्त बड़ी कड़वी कड़वी बातें लिखी हैं। मैंने कहा उसके लिए तो मैं काफी बदनाम हूँ कड़वा लिखने के लिए। मैंने मुद्दा इसका इतना ही था, ये जियो एथिकल फेलियर, मैं जियो एथिक्स ग्रुप में काम कर रहा था, और जियो एथिक्स का ही आजकल ये सब कुछ जो कर रहा हूँ, ये मेरे जियो एथिक्स ग्रुप वाले आज भी दुनिया में इसको देखेंगे, ये सारा फेसबुक लाइव पे लगेगा जो बातचीत हो रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा, those who don't give life-saving warning in time are the killers। और बाद में मैंने करंट साइंस में भी ये भेजा, तो जो रेफरी थे उन्होंने कहा कि इट्स नॉट आवर मैंडेट टू अवेकन पब्लिक। आई टोल्ड द एडिटर आई वांट टू मॉडिफाई माय स्क्रिप्ट, इट इज देयर मैंडेट टू अवेकन पब्लिक। करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया लेकर रिसर्च करिएगा आप, एक पेपर छापने के लिए, अपना बायोडाटा चमकाने के लिए तो नहीं करिएगा ना। जिस जनता के टैक्स पेयर पे आप रिसर्च करते हैं, अगर वक्त रहते आप उसको गोल्डन टाइम में, सुनामी कोई भूचाल नहीं है कि मार देगी, गोल्डन टाइम में आपने वार्निंग नहीं दी। आज की तारीख में हर सेकंड हमारे पास हजारों मैसेजेस आते रहते हैं, टेलीविजन तो तब भी चलता था, तो उसके बाद में थोड़ा सुधरा कि नहीं सुधरा मैं नहीं जानता, भगवान करे दोबारा वैसी सुनामी ना आए। पर हर डिजास्टर की, चाहे वो उत्तर काशी का वो था डिजास्टर, again we have eyes in the skies, we have synthetic aperture radar system, but warnings are not being given, and institutes who could do things, they are not given the lead role। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक तरफ डाल दिया जाता है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसको लीड रोल नहीं मिलता, वो बाद में जाता है इन्वेस्टिगेट करने। रिलीफ तो तब मिलता है जब आप टाइम पे वार्निंग दे दीजिए, और खाली टाइम पे वार्निंग नहीं, जो डेवलपमेंट हो रही है आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, दैट शुड बी गाइडेड वेरी फ्रैंकली ऑनेस्टली बाय जियोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट। आई एम श्योर सुंदरलाल बहुगुणा जी की अगर सुनी गई होती तो जो अभी हुआ था पीछे में वो नहीं होता, वो मार नहीं होती। भूचाल तो आएगा, पर भूचाल में इफ यू फोरवॉर्न यू आर फॉर आर्मिंग एंड जान बचेगी। ये नहीं होता, ये नहीं होता जो हुआ था। और पॉल्यूशन की बात आज जरूर कर लें, पॉल्यूशन बाहर बहुत ज्यादा है, पर पॉल्यूशन हमारे घर में कई बार बहुत ज्यादा, बाहर से भी ज्यादा होता है। घर के पॉल्यूशन को ना भूल जाइए। एक्ट, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, एक्ट डोमेस्टिकली। घर में आपके पर्दों में ढेर सारा पॉल्यूशन रहता है, घर में आपके जो तड़के लगते हैं किचन में, वो सारा बच्चों के, बुजुर्गों के, बीमारों के सांस में, फेफड़ों में जाता है। और ये है भविष्य हमारा, ये भविष्य है हमारा कि हमें स्वच्छ हवा खरीदनी पड़ेगी। और पर मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, हम हिंदुस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी है। उत्तराखंड के बॉर्डर में जाइए, हिमाचल के बॉर्डर में जाइए, लद्दाख के बॉर्डर में जाइए, उधर ईस्ट बॉर्डर पे जाइए, और वहां पे ये शुरू करवा दीजिए ना ये कैनिंग हमारी स्वच्छ हवा की। वो ये वाला ये हाल है हमारा, कुछ भी तो नहीं छूट रहा। इनहेलिंग टॉक्सिन्स, आंख गई, दिल गया, लिवर गया, नर्व्स गई, किडनी गई, हड्डियां गई, क्या यही तो हैं थोड़े से केमिकल, यही तो थोड़े से हैं। पर ये हम तो हर रोज वो कार चलाते हैं, कार बेकार है, पैदल चल लेना ज्यादा ठीक है, थोड़ा साइकिल चला लीजिए। कार पे पैसे वेस्ट होते हैं, कुछ नहीं फायदा। फिर ये होता है पंजाबी में जिसको बोलते हैं ना, आवाई कूद गया, बेड़ा गर्क हो गया हमारे जिस्म का, हमारी आने वाली पीढ़ी का भी अगर यही हाल होगा, नवजात बच्चे का ये हाल होगा। बिना स्मोकिंग किए कोई स्मोकर रहेगा, वर्चुअल स्मोकर जिसको बोलते हैं ना, वर्चुअल नहीं, कंपल्सिव स्मोकर। आप सिगरेट पीने वाले हो या ना हो, वो एक सुना होगा आपने, ये हिमाचल वाले के फेफड़े, आई एम श्योर उत्तराखंड वाले के भी ऐसे ही होंगे बढ़िया, देहरादून वालों के आई एम नॉट श्योर होंगे, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट वालों को चाहिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हैं, ये वाले फेफड़े, ये वाले हैं दिल्ली वालों के। एंड आई एम श्योर हमारे 16-17 शहर और तकरीबन 100 शहरों में ऐसे ही फेफड़े हैं सबके। ये बड़ी भारी, उसने इंडिया टुडे ने ये कैप्शन लिखी थी, कैपिटल पनिशमेंट नेशनल, एनसीआर को उसने कहा नेशनल कैपिटल रीजन को
ये कैपिटल पनिशमेंट है इनमें। ये मूर्तियां लगा के इनको स्वतंत्रता सेनानियों को उसने अच्छा कटाक्ष किया। कई बार कटाक्ष की भाषा, कार्टून की भाषा ज्यादा समझ लगती है लोगों को। तो ये आज के दिवस पे हमें ये जरूर बताना चाहिए कि हम तो ये कोने में खड़े हैं ये वाले में, पर ये हैं सारे हमारे पूर्वज। और क्लाइमेट चेंज की जो बातचीत होती है, याद रखिएगा कि कहते हैं कि इंसान क्लाइमेट चेंज का कल्प्रिट है। इंसान श्योरली बहुत बदतमीज आदमी है और वो बहुत पोल्यूशन कर रहा है। बिन बात के पेड़ काटता है, बिन बात के गाड़ी चलाता है, बिन बात के लकड़ी जलाता है, बिन बात के पानी में मलबा फेंकता है, सब कुछ करता है। बट ये जो पिछले वाले थे ना, ग्लोबल वार्मिंग इन्होंने भी देखी थी। सो ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली मैन मेड, ओनली पोल्यूशन विच इज नेचुरल इज वॉल्केनिक पोल्यूशन, रेस्ट ऑल इट एंड रॉक्स से भी आएगा पोल्यूशन, पानी में जाएगा। बट ये जरूर हमको जियोलॉजिस्टों को, पर्यावरणविदों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि हम पूरे इकोसिस्टम की, भूवैज्ञानिक इकोसिस्टम की और वर्तमान इकोसिस्टम की जानकारी दें, जागरूकता, एक अवेकनिंग करें। तो ये विज्ञान प्रसार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, बट अफसोस विज्ञान प्रसार का भी प्रसार नहीं है। लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, ये चैनल पे लोग इसको देखते नहीं हैं। हम लोग अगर कोशिश करें, ये ऐसी समराइज एक एक पोस्टर की जानकारी अगर हम पहुंचाएं स्कूल से स्कूल तक, बहुत बड़ा पुण्य होगा। लोगों को बताएं कि मैंग्रोव्स द कोरल रीफ, अगर ये आपने ना तोड़े होते तो सुनामी आपका बाल नहीं बांका कर सकती थी। नदियां बहुत पवित्र है, जीवन धारा है नदियां, इसको बचाने के लिए ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन डाल दिया, नदियां में, लुधियाना में बुड्ढा नाला में डाला। वेटलैंड्स हैव बिकम वेस्टलैंड, इनका भट्टा दिया है लोगों ने। वो तालाब सूख जाते हैं, उसमें मलबा डालने लगते हैं। और पहाड़ हमारे बहुत बहुत उम्दा हैं, बहुत पवित्र हैं। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटा सा मैंने एक पेज में धरती का इतिहास एक बार लिखा था दैनिक हिंदुस्तान में, ने इसको हिंदी में लिख के अपने वेबसाइट पे डाल दिया था। तो ये समराइज सिंपल, देखिए हम लोगों को टेक्निकल जार्गन से बाहर निकलना होगा, हमें ये भाषा की बेड़ियों को तोड़ना होगा, हमें कम्युनिकेशन बाय ऑल मीन्स, कम्युनिकेशन बाय एनी मीन्स, कम्युनिकेशन एट ऑल कॉस्ट, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू इफ वी हैव टू डू आवर रोल वेल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं इसी को, वो मसूरी के आसपास का है वो स्ट्रेस फॉसिल, ये पूरा इतिहास स्पीति वैली का, मैं क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे में भी था और यूनिवर्सिटी से भी बहुत बार उधर गया। मैं बेसिकली एक फील्ड जियोलॉजिस्ट हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या हैं, तो मैं साफ कहता हूँ कि मैं आई एम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो मैं इस पे ही एक उदाहरण, ये इस पे मैं इसको खत्म करूंगा। सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के पास में ये ऑर्डोविशियन बैट्स ढेर सारी ऐसे मिली, फुल ऑफ। सीधे से जियोलॉजी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट हुआ कि ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी, पूरा का पूरा लेयर उठा के उन्होंने ये अपने वहाँ पे म्यूजियम में डाल दिया। आपका म्यूजियम भी वर्ल्ड क्लास है, हमारा म्यूजियम भी चंडीगढ़ में, और उधर एमआर साहनी साहब का बनाया हुआ 10 सेक्टर का, अशोक साहनी साहब का बनाया हुआ बहुत उम्दा है। पर हर शहर में, हर गांव में एक छोटा एनवायरनमेंट का और भूविज्ञान का म्यूजियम हो, वो बहुत जरूरी है। शहरों के म्यूजियम से कुछ ना होगा। और जो म्यूजियम जा न सके, प्लीज, आजकल बहुत आसान हो गया है। हम लोगों को सबको, आई एम श्योर हम पढ़े लिखे भी अपने छोटे बच्चों को, ग्रैंड किड्स को वो म्यूजियम नहीं दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, दिखाएं। वो लगता है कि नहीं क्या होगा, बहुत कुछ होता है। जब जापान का, न्यूयॉर्क का स्मिथसोनियन म्यूजियम, लंदन म्यूजियम, आप नेचुरल हिस्ट्री का दिखाते हैं, नेचुरल हिस्ट्री में बहुत कुछ होता है, पूरे ज्ञान का, विज्ञान का, पर्यावरण का निचोड़ होता है। तो आप देखिए, दिखाने वाले तो एक फाउंटेन, पानी पीने वाले पानी के नीचे भी पूरा एग्जीबिशन लगा दिए ग्रैंड कैन्यन में। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं कर सकते हैं? पाकिस्तान वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान वाले, श्रीलंका वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोगों को मिलजुल के भूविज्ञान को, इको टूरिज्म को, जो टूरिज्म को बढ़ावा देना है, पुश देनी है। इसी से हम अमीर होंगे, इसी से यहाँ पे शांति होगी, इसी से हमारा ज्ञान बढ़ेगा, इसी से हमको सबसे बड़ी बात मजा आएगा। मजा जिंदगी में बहुत अहम होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ऑनर्ड। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से मिला निमंत्रण मेरे लिए सबसे बड़ा
इसको मैं सबसे बड़ा सम्मान गिनता हूँ। आपके आगे मैं सिर झुकाता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया और आपसे रिक्वेस्ट है भविष्य में भी हम मिलजुल के ये वाली बातचीत को स्कूलों में और सोशल मीडिया पे जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने बच्चों का, अपने ग्रैंड किड्स का, बुजुर्गों का ये सब कुछ, ये मजा करवा के, ये सब कुछ शेयर उनके साथ करके उनके जीवन में एक नया पहलू आप प्लीज जरूर डालिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय न लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, आपने इतने कम समय में ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण पर इतना बड़ा संदेश दिया है, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपने अपने व्याख्यान में प्रोफेसर भाटिया एवं माननीय स्वर्गीय बोगड़ा जी को शामिल किया और यह बहुत हर्ष का विषय है कि ये दोनों ही महाहस्तियां वाड़े संस्थान के बहुत करीबी रही हैं। माननीय आलूवाले जी, आपके व्याख्यान ने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं और मेरे सहयोगी जो इस वार्ता को सुन रहे थे मेरे से सहमत होंगे कि अपनी मातृभाषा में इतना सार गर्भित व्याख्यान कानों में अमृत घोल रहा था और साथ ही चेतावनी दे रहा था कि अभी भी ना संभले तो बहुत देर हो जाएगी। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण का संरक्षण हर कीमत पर करना होगा। आज के समय में आप जैसे प्रखर प्रवक्ता की जरूरत है जो जन भावना में चेतना जागृत कर सके। प्रोफेसर आलूवाले जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम मिलजुल कर इस तरह से ये संदेश फैलाते रहेंगे। और सर, मैं आपको बहुत आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर ये पेंडेमिक का समय ना होता तो हम और आगे आने वाले समय में हम देहरादून में हमेशा ऐसे फंक्शन करते रहते हैं जिसमें 1000 बच्चे, 1500 बच्चे जुड़ते रहते हैं, हमको व्याख्यान देते रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक बार अवश्य बुलाएं इस क्षेत्र में। धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका। मैं अपने निदेशक महोदय का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को अरेंज करने की अनुमति दी। मैं खास करके डॉक्टर विक्रम गुप्ता का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्हीं की वजह से हम आपके साथ जुड़ पाए। मैं अपने IT पीपुल्स का बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतने कम समय में इसको जोड़ दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार प्रोफेसर आलूवाले जी, धन्यवाद, नमस्कार।